یہ کہانی ہے آج سے 20 برس پرانی، جب ہم لوگوں نے کراچی 3 تلوار میں ایک گھر کرائے پر لیا۔ وہ گھر جیسے ہم لوگوں نے کرائے پر لیا، اس گھر میں اپنا سامان رکھنے کے بعد ہم لوگ 10 دن کے لیے حیدرآباد چلے گئے۔ میرے ماموزاد بیٹے کی شادی تھی، 10 دن ہم لوگ وہاں پر رہے۔ ابھی گھر میں کوئی بھی سامان سیٹ نہیں کیا تھا، بس اس گھر میں سامان جوڑنے کے فوراً بعد اگلے دن ہی ہم لوگ حیدرآباد آ گئے۔ شادی ختم ہونے کے بعد 10ویں 11ویں دن جب ہم لوگ واپس کراچی گئے، جا کر گھر کھولا، ہم لوگوں کا سامان جیسے تھا ویسے ہی تھا۔ سامان برآمدے میں تھا اور آگے ہم لوگوں نے گرل بند کی ہوئی تھی۔ جب گرل کھولی تو ہم لوگوں کے سامان کے اوپر بہت بڑے بڑے جالے بنے ہوئے تھے۔ وہ جالے 10 دن کے نہیں لگ رہے تھے، جالے ایسے تھے کہ جس طرح سے 1 سال قریب یا 5-6 سال سے گھر خالی ہو تو وہ جالے لگتے ہیں۔ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے جالے۔ بہرحال ہم لوگوں نے ساری صاف صفائی شروع کی، گھر کا سارا کام کیا، صفائی کی، جیسے جیسے کمرہ صاف کرتے وہاں سامان رکھتے جاتے، یہاں تک کہ آج ہم لوگوں نے 2 کمرے سیٹ کر لیے۔ آج اس گھر میں ہماری پہلی رات تھی، بہت زیادہ ہم لوگ تھکے ہوئے بھی تھے۔ باہر سے ہی کھانا آیا، پوری فیملی نے کھانا کھایا اور ہم لوگ کمروں میں سو گئے۔ اس رات باہر سے ایک عجیب سی باریک سی سیٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے گلی سے گزرنے والا چوکیدار رات کے وقت سیٹی بجاتا ہے، اس سے ملتی جلتی آواز تھی، لیکن یہ آواز بہت زیادہ باریک سی تھی۔ ہم لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا۔ اگلے دن ہم لوگوں نے پھر گھر کا سارا سامان سیٹ کیا، رہتے حصے بھی سیٹ کر لیے، اور اس کے بعد جو ہی رات کا ٹائم ہوا، تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، شدید آندھی چلنے لگی۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر کے پرانے در و دیوار ٹوٹ جائیں گے۔ پورا ماحول بدل کے رہ گیا۔ دن میں ہلکے ہلکے بادل تو تھے، لیکن ایسا موسم بنے گا یہ بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ اس گھر میں پہلے دن ہی اتنی شدید آندھی، مکمل طور پر تو آج پہلا دن ہی بنتا تھا سارا گھر سیٹ ہونے کے بعد۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی مشکل سے گھر صاف کیا تھا، اب پھر اس کا صحن، اس کی سیڑھیاں، دہلیز، سارے حصے خراب ہو جائیں گے، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ ہوائیں بہت تیز تھیں، اور جب تنگ گھروں کی بڑی اور اونچی دیواروں کے ساتھ ٹکراتی تھی تو عجیب آواز آتی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کسی کی چیخیں فضا میں گونج رہی ہیں۔ تبھی ایک دم سے ایسا لگا چھت کے اوپر کچھ گرا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ چارپائی میں کھڑی کر کے آیا تھا دوپہر میں چھت پہ، لگتا ہے چارپائی گر گئی ہے، میں جاتا ہوں اور چارپائی کو سیدھا کر کے آتا ہوں۔ میرا بھائی تیزی کے ساتھ چھت کے اوپر جانے لگا۔ جیسے وہ چھت کے اوپر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے برآمدے میں وہ چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کوئی لیٹا ہوا تھا، سفید کلر کی چادر اوڑھے۔ میرے بھائی کے ایک دم سے جیسے ایک آندھی، اوپر سے مٹی، اس کی چیخ نکل گئی، کون ہے اوپر؟ جو ہی اس نے کہا، آنکھوں میں مٹی جا رہی تھی، آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو چارپائی خالی تھی، جبکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں چھت کے اوپر گیا تھا میں نے وہاں پر چارپائی پر کسی کو لیٹے دیکھا تھا۔ اس نے چارپائی کھڑی کر دی، نیچے آگے آ کر اس نے بتایا۔ امی نے کہا کہ اتنی آندھی طوفان ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وہاں سے کوئی چیز، کوئی کاغذ، کوئی کپڑا پرانا ہوگا، اڑ کر آیا ہوگا چارپائی پر، تو تمہیں لگا ہوگا کوئی لیٹا ہوا ہے۔ ابو نے بھی یہی کہا کہ ہم سب نے بھی اس کو یہی کہا۔ 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوا، چھت کے اوپر پھر سے چارپائی ویسے ہی گری، اور اب چارپائی چھت کے اوپر کوئی گھسیٹ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے چارپائی برآمدے سے نکالی، صحن تک کوئی لے کر آیا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ رات کے اس پہر میں چھت کے اوپر بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی بوندیں گرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر چھت پر کون تھا جو چارپائی کو گھسیٹ رہا تھا؟ یہ بات بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی۔ اس کے بعد صبح ہو گئی، چھت پر جا کر دیکھا تو وہی چارپائی گھسیٹ کر کسی نے
बाहरी छत के एक कोने की तरफ की हुई थी और वैसे ही टेढ़ी चारपाई थी जैसे बरामदे में बिछी हुई थी। अब वो चारपाई इतनी हल्की नहीं थी कि वो हवा से इस तरह से बाहर खुद ब खुद आ जाती, वो दीवार के साथ खड़ी हुई थी। बहरहाल फिर से चारपाई उठाई और लाकर बरामदे में खड़ी कर दी। आज फिर से पूरा दिन साफ सफाई की। बारिश, मिट्टी से सीढ़ियाँ, सहन, दहलीज बहुत खराब हुए हुए थे। जो ही मैं घर की सफाइयाँ करके हटी, शाम हो गई। आज भी बादल बने हुए थे। उन दिनों में कराची में बहुत बारिशें हो रही थी, यहाँ तक कि जो कुछ ऐसे इलाके हैं वहां पर तो पानी भी खड़े हो चुके थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। हम लोगों की दहलीज में एक बल्ब लगा हुआ था जिसकी रोशनी आधी सीढ़ियों तक जाती थी। रात 12:30 बजे का टाइम था। मेरे सर में बहुत सर दर्द था। तकरीबन घर के सभी लोग सो चुके थे। मैंने सोचा उठकर चाय बनाती हूँ। मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई। मैं चाय बना रही थी, मुझे ऐसी आवाज़ आई कि जिस तरह से हम लोगों की छत की सीढ़ियों से कोई पाँव में पायल पहने नीचे उतर रहा है। छन 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 की आवाज़ आ रही थी, जैसे स्टेप बाय स्टेप कोई नीचे आ रहा है। मुझे जब भी वो आवाज़ मेरे कानों से टकराई, मैंने फौरन झांक कर बाहर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि जैसे सीढ़ियों के दरमियान एक औरत खड़ी है, बिल्कुल छोटे से कद की, काला स्याह चेहरा है और उसने जैसे काले रंग का ही लिबास पहना हुआ है। बिल्कुल सामने खड़ी थी दीवार के साथ, आधी आधी नजर भी आ रही थी। मैं एकदम पीछे हटके डर के, मैंने कहा कौन है बाहर? फिर झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था। अब मैंने वाज़े देखा उसको और पूरा 1 सेकंड देखा। चाय पता नहीं पकी थी नहीं पकी थी, कच्ची थी। मैंने कप में डाली, मैं अंदर ले गई, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब अम्मी सोई हुई थी। पहले मैंने सोचा अम्मी को जगा कर बताती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं अम्मी परेशान हो जाएंगी। रात के इस पहर में बारिश हो रही थी 12:30 बजे और वो छत के ऊपर चल रही थी। उसके कदमों की वो धम धम की आवाज़ जो थी ऊपर से सुनाई दे रही थी। मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि पता नहीं ये क्या है और क्या नहीं। मैं सो गई। तकरीबन 2-2:30 बजे मैं सोई जाके। मुसलसल मैंने आवाज़ें सुनी। वो बिस्तर छत पर फिर रही थी, कभी इस दीवार के पास कभी इस दीवार के पास, इस पूरे सहन में छत के वो चल रही थी। सुबह जब मैं जागी, मैंने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा कि ये क्या मच रहा है? तुम्हारे भाई ने, इमरान ने भी यही बात की, अब तुम भी यही बात कर रही हो, क्या सच में इस घर में कुछ है? मैंने कहा कि अम्मी है, कुछ ना कुछ तो इस घर में है। अब 2-3 दिन कुछ नॉर्मल गुजरे। उसके बाद क्या हुआ, घर में से शाम होते ही एक अजीब सी स्मेल आने लग गई। स्मेल ऐसे थी जैसे कच्चे गोश्त की स्मेल होती है, पूरे घर में फैली हुई। हम लोग देख रहे थे जगह जगह से कि स्मेल कहाँ से आ रही है। पूरा घर छान मारा। पूरे घर में कहीं भी कोई ऐसी हम लोगों को चीज़ नज़र नहीं आई जिससे गोश्त की स्मेल आती। बहुत गंदी स्मेल शुरू हो गई। हम लोग बड़े परेशान हो गए कि पता नहीं क्या मामला है इस घर में। रात भर कोई छत पर चलता है, फिर औरत का नज़र आना। जब से वो मुझे औरत नज़र आई थी, मैं बीमार रहने लग गई। मुझे शाम होते ही बुखार होने लग जाता था। इसी तरह से 4-5 दिन गुजर गए। हमारे घर में रात को इतना अंधेरा महसूस होने लग गया, इतना अंधेरा महसूस होता था कि जो बरामदे की लाइट थी वो भी सहन तक नहीं जाती थी और जो दहलीज में बल्ब लगा था वो भी बिल्कुल मद्धम हो जाता था। हम लोग डरने लग गए क्योंकि जो ही वो अंधेरा बढ़ता था तो दीवारों के ऊपर काले साए नजर आने लगे। अब ये तो हमें पता चल गया था कि घर आज सेफज़दा है। हम लोगों ने अपने पास से एक काम किया। हम लोगों के पास एक पुराने कुछ नक्श पड़े थे, कुरान पाक की आयात थी वो हम लोगों ने दीवार के ऊपर लगा दी जिस कमरे में हम लोग सोते थे। बस वो लगाने की देर थी, वो जन्नात तो जाहिर हो गए बहुत ज़्यादा। आधी रात का टाइम था, तकरीबन 1:30 बजे का। हमारे घर के जो सहन का हिस्सा जहाँ सीढ़ी ऊपर जाते हैं वहाँ से बकरी के बोलने की आवाज़ आ रही थी हमारे घर के अंदर से। अब्बू की आँख खुली। अब्बू ने कहा कहीं किसी दरवाज़ा खुला रह गया, किसी महल्लेदार की बकरी ना आ गई हो। अब्बू ने जब बाहर जाकर देखा तो छत के आखिरी सीढ़ी के साथ जो दीवार होती है वहां से एक काले रंग का सर निकला हुआ था बकरी का।
बकरी बोल रही थी हमारी छत पे। अब्बू ने फौरन बाहर का दरवाजा खोला गेट का और छत पर चले गए। छत पर जाकर अब्बू ने देखा पूरा छत खाली, कोई बकरी नहीं, कोई बकरी का नामो निशान नहीं। कमरों के दरवाजे बंद थे, बरामदा खाली, छत खाली, दीवारें इतनी ऊंची। अब्बू जब सीढ़ियों से नीचे आने लगे, अब्बू तीसरी सीढ़ी पर थे। अब्बू को ऐसे लगा जैसे अब्बू का बाजू किसी ने पकड़कर जोर से खींचा अपनी तरफ। अब्बू 3-4 सीढ़ियों में ऊपर तक घसीटते हुए गए। अब्बू की जब चीखें आई, हम लोग भागे। काले रंग का साया था जो अब्बू को खींच रहा था। हम लोगों ने अब्बू को पकड़ा। अब्बू की कमर पर और ये रिब्स पर, पसलियों पर बहुत चोटें आई थी। अब्बू ने कहा कि मैंने तो ऐसे बकरी की आवाज़ सुनी थी और मैं ऊपर भाग कर गया, तो ऊपर कोई था नहीं। और फिर जैसे मैं नीचे आया हूँ, मेरी 3 सीढ़ियों पर था, तो मेरा बाजू किसी ने पकड़ कर ऊपर खींचना शुरू कर दिया मुझे। फिर अब्बू बहुत ज़्यादा बेचारे बीमार रहे, बुखार हो गया, पसलियों वाली जगह पर स्वेलिंग हो गई। डॉक्टर से दवाई वगैरह ली, दर्द का आराम नहीं आता था। मेरा भाई एक बूढ़े आदमी को जानता था, वो दम किया करते थे। मेरा भाई उन्हें लेकर आया। वो इस घर में आए, जब उन्होंने अब्बू को दम किया, अब्बू को देखा, उन्होंने ये कहा कि ये घर छोड़ दो, इस घर में बड़े सख्त जिन्नात हैं, पूरी फैमिली है। वो इतने सख्त जिन्नात हैं, वो जाने नुकसान देने वाले जिन्नात हैं, वो तुम लोगों को जान से मार देंगे। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है, इस घर को छोड़ दो। इस घर में आफतें, चुड़ैलें, जिन्नात रहते हैं इस पूरे घर में। और जब तुम लोगों ने, वो इस घर में रहते हैं, वो जिन्नात तुम लोगों को इस घर में रहने नहीं देंगे। अगर जान प्यारी है तो बच जाओ, अगर वो तुम्हें घसीट कर ऊपर ले जाती तो उसने तुम्हें जान से मार देना था। वो बकरी के रूप में जाहिर हुई, तुम लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे ये नक्श लगा दिए। इस घर में नॉन मुस्लिम जिन्नात हैं और वो बड़े सख्त जिन्नात हैं। वो कुरान पाक की आयत को, कुरान पाक के नक्श को जब देखते हैं तो वो उनको जलन होती है, उनका जिस्म जलने लग जाता है। तो जब उनको तकलीफ होती है, वो तुम लोगों को भी तकलीफ देंगे। अभी तो शुरुआत है। अगर तुम लोगों ने ये घर ना छोड़ा तो तुम्हें बहुत ज्यादा सताएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। फिर ये मामलात शुरू हो गए। हमने उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया, कुछ लिया भी, कुछ मजबूर थे कि कहाँ जाए। अब महीना भी नहीं था हुआ उस घर में, 20 दिन हुए थे तो ये सारे काम शुरू हो गए। फिर घर के अंदर बड़े बड़े पैरों के निशान लगने लग गए। कभी काले रंग के होते, पता नहीं किस चीज के निशान होते, काले रंग का कीचड़, कभी दीवारों के ऊपर सुर्ख रंग के निशान, हाथों की हथेलियों के निशान। जब हम लोगों के घर में मैंने देखा कि किचन में मेरा भाई खड़ा था फ्रिज के पास, मैंने अपने भाई के पीछे काली स्याह परछाई देखी, उसकी सुर्ख रंग की आंखें थी। मैंने शोर मचा दिया, वो नीचे बैठ गया। उसी वक्त वहां पर किचन में एक पंखा लगा था, वो नीचे गिर गया। शुक्र है कि वो बच गया, वो साइड पर था, वरना उसके सर के ऊपर आकर लगना था। जब मैंने कहा ना तुम्हारे पीछे कोई है, वो आगे भागा और भागकर बिल्कुल किचन के दरवाजे में नीचे बैठ गया डर के, और पंखा ऊपर से गिर गया। फिर हम लोग बहुत डर गए। फिर हम लोगों ने बिलाखिर वो घर छोड़ दिया। वो घर इतना भयानक था, कराची 3 तलवार का वो घर बहुत डरावना था, बहुत पुराना घर था। वहां पर बहुत जिन्नात थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच गए किसी नुकसान से। तो ये हमारी एक कहानी थी। माय यूट्यूब फैमिली, कभी भी जिस जगह पर आपको जिन्नात के मामलात, असरात महसूस हों, उन जगहों पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ मकान, कुछ घर मौत सता होते हैं। वहाँ पर जब लोग बसिद होकर रहते हैं तो वो जिन्नात उनको जान से मार देते हैं। ये थी रात की कहानियों की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें कि नई आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।